हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल राइटिंग बुद्धा। इस बार हम लोग बात करने वाले हैं अंकुर वारिको की सबसे लेटेस्ट किताब गेट एपिक शिट डन के बारे में, जो अभी अभी रिलीज़ हुई है। लास्ट ईयर अगर आपको याद हो तो दिसंबर 2021 में उनकी किताब रिलीज़ हुई थी, डू एपिक शिट, और वो किताब बहुत फेमस हुई, वो किताब बहुत ज़्यादा बिकी। एंड अगर आपको याद हो उस टाइम पे, चाहे वो इंस्टाग्राम था, स्नैपचैट था, लिंक्डइन था, व्हाट्सएप स्टेटसेस थे, हर जगह लोग उस किताब के कोट शेयर कर रहे थे, क्योंकि वो किताब एक इस तरीके से लिखी हुई थी कि आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि जो चीज़ आप कभी सोचते नहीं हो, उस किताब ने आपको सोचने पर मजबूर किया था। मैं अंकुर वारिको को बहुत समय से उनके यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहा हूँ, उनके इंस्टाग्राम रील्स भी देखता हूँ, जहाँ पे वो हमेशा 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स बताते हैं हर चीज़ के बारे में। हम जो लोग अभी तक उनको नहीं देखे हुए हैं उनके वीडियोस को, वो उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी और वीडियो के एडवर्टीजमेंट में देख चुके हैं, जहाँ पे वो अपना कोर्स बेचने आते हैं। तो अंकुर वारिको एक ऐसे फिगर हो चुके हैं जिनको ऑलमोस्ट हर एक डिजिटल मीडियम कंज्यूम करने वाला आदमी जानता है। अब क्योंकि मैंने उनको इतना फॉलो किया था, मेरे को हमेशा उनसे एक कंप्लेन रहती थी कि क्यों वो हमेशा, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर रह चुके हैं, मेहनत के बारे में बात नहीं करते, हार्डवर्क के बारे में बात नहीं करते, हमेशा वो ऐसे डिसीजंस लेने के बारे में क्यों बात करते हैं जो कि बहुत मुश्किल हैं किसी भी इंसान को लेने के लिए, और उसको वो सब चीज़ें ज़्यादा ग्लैमरस लगेंगी तो वो अपने फैमिली के खिलाफ हो जाएगा, अपने पैशन फॉलो करने चले जाएगा, अपने 20s को वो एक्सप्लोर करने में वेस्ट कर देगा। बट फाइनली इस किताब ने गेट एपिक शिट डन जो अभी रिलीज हुई है, इसने वो सभी कंप्लेन दूर कर दिए हैं, बिकॉज अंकुर वारिको इज नाउ फाइनली, एज द टाइटल ऑफ द बुक शेज, is focusing upon finally taking action. So rather than being a mediocre person, now he is talking about not to be relaxed about your growth and success, and finally taking those steps forward through which you can achieve whatever you want to. So everything has been spoken in the same format the way he speaks in his YouTube videos, so you will feel that a big brother and elder brother is guiding you without any judgments and is trying to help you as much as possible. So I was very in awe of him while reading the book, the way I am also while watching his videos, because I never had an elder brother to guide me. So whenever Waрико does that, I always see him in that figure itself. The book is written in the teacher-student format. So there's a student who has a lot of questions. So the student is at an age where he has many doubts about education, career, relationship, communication, personal growth, because all of these are not taught to him by anyone, neither by school nor by his parents. Now he is not knowing what to do next, to help clear this obstacle and achieve what he wants to. So then he asks these questions to the teacher, and then teacher makes him understand the root cause of the problem and how he has derived to the solution. Everything has been written in such a smooth transitional way that you are able to understand what the teacher is trying to make the student understand, and you will get to learn a new perspective or a better perspective about all these questions of which the answers have been given off. So the way Arjun was confused and Krishna Bhagwan gave him the reason, he made him understand the philosophy, after which Arjun himself understood the direction at which he needs to go ahead. Similarly, the book has been written and the book has been executed, so you'll get the same feel of Bhagavad Gita while reading it. The book will help you uncover a lot of your doubts, and therefore you will feel that this is one opportunity, one final opportunity I have got to finally understand things that I have never understood about and I also always wanted to know. तो जैसे मेरी बात करें तो इस समय मेरे लिए मेन फोकस लाइफ का है करियर और रिलेशनशिप, उसके बारे में भी क्वेश्चन है। अब जब ये क्वेश्चन मैं कभी किसी से पूछ नहीं पाता, क्योंकि बड़ों से पूछने में शर्म आती है और कोई बड़ा भाई ऐसा है नहीं जिसके साथ मैं खुल के ये सब सारी बातें कर सकूं। तो जब ये सेक्शन आया तो मैं एकदम फोकस्ड हो गया। इसी तरीके से अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको करियर को लेकर प्रॉब्लम है, स्टडीज़ को लेकर प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम, जब आप पढ़ोगे आप इतने ज़्यादा फोकस्ड हो जाओगे किताब को पढ़ने में कि आप अपना मोबाइल तक नहीं उठा के देखोगे कि हम लोगों की प्रॉब्लम हो चुकी है कि हम कुछ भी चीज़ करते हैं तो बार बार मोबाइल उठा के देखते हैं, आप एकदम भूल जाओगे। ये किताब इतनी अच्छी तरीके से आपको हर एक एडवाइस देती है। किताब में इलस्ट्रेशंस भी हैं, डायग्राम्स हैं जो आपको बेटर अंडरस्टैंड करवाती हैं वो सारे कॉन्सेप्ट जो टेक्सचुअल वर्जन में लिखे हुए हैं, और वो इतनी सुंदर है कि अगेन ये सारी चीज़ें शेयर होंगी इंस्टाग्राम स्टेटस वगैरह पे, आप भी कर सकते हो अगर आपको मज़ा आता है वो सब करके और लाइक्स बटोरने में। तो किताब 4 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला मैनेजिंग योर लाइफ, मैनेजिंग योर करियर, मैनेजिंग पीपल एंड फाइनली मैनेजिंग योर सेल्फ। और इन्हीं चारों सेक्शंस के अंदर ये टोटल 36 क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट टीचर से पूछते हैं और आंसर्स मिलते हैं। सो दैट इज़ हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ द बुक इज़।
बहुत से ऐसे कोट्स हैं इस किताब के अंदर जो आपकी लाइफ चेंज कर देंगी, आपको एक बेटर पर्सपेक्टिव दे देंगी। तो आपको पढ़ने में ओवरऑल किताब को बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत सीखने को मिलेगा और वन ऑफ द मोस्ट आप कह सकते हो एक्शन ओरिएंटेड किताब है, इफेक्टिव किताब है, इम्पैक्टफुल किताब है। अब मैं कुछ चीज़ें मेंशन करता हूँ कई चीज़ों में से जो मुझे पसंद आई, तो इस वीडियो में कुछ ही कवर कर सकता हूँ। तो मैं कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं वो आपके सामने बताता हूँ जो मुझे पसंद आया। सबसे पहला वो वहाँ वारिको जी बताते हैं कि राइटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे दिमाग में हमेशा इतने थॉट्स आ रहे होते हैं तो हमेशा हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं। एक बार जब हम उनको लिखने लगते हैं तो हम सिर्फ वही चूज़ करना चालू करते हैं अपने दिमाग में से थॉट्स जो हमको पता है कि यूज़फुल हैं या मेरे को एक्चुअली कुछ फ़ायदे पहुंचाएंगे। तो इसके लिए राइटिंग एक ऐसी थेरेपी है जो आपके कई डाउट तो ऐसी क्लियर कर देती है और आपको फाइनली समझ में आता है मुझे करना क्या है लिखने के बाद। सेकेंडली स्टूडेंट उनसे पूछते हैं कि मैं एक बेटर कम्युनिकेटर कैसे बनूं, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या है, और टीचर समझाते हैं कि सबसे बड़ा एलिमेंट है बीइंग अ गुड लिसनर टू बीइंग अ गुड कम्युनिकेटर, और उसका फ़ायदा वो जिस तरीके से बताते हैं इट इज़ सो वेरी इफेक्टिव। तो वो भी एक चैप्टर बहुत अच्छा लगा मुझे। देन कैसे डिसीजन लेते समय अगर आप वर्स्ट के सिनेरियो के बारे में पहले से सोच लो कि अगर ये वर्स्ट के सिनेरियो में क्या होगा, अगर आपको पता है कि आप वो डील कर पाओगे और उससे वापस से राइज कर पाओगे तो आपके आधा डर खत्म हो जाता है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। सो दैट वाज अनदर ब्यूटीफुल थिंग दैट आई रेड। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे 20s में और जब हम स्कूल में होते हैं कि हमारे फैमिली वाले हमको इतनी एडवाइस देते हैं, इतना क्रिटिसिज्म करते हैं कि हम इरिटेट हो जाते हैं उससे कैसे डील करें। तो बहुत अच्छी तरीके से वारिको जी ने समझाया है कि कैसे आपको गिवर के ऊपर कम कंसंट्रेट करके क्या गिव किया जा रहा है, व्हाट यू आर बीइंग गिवन, उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। सो कीप द मैसेज विथ यू, अंडरस्टैंड कि क्या ये मैसेज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो समझो आपके फैमिली मेम्बर्स आपको कहते हैं कि तुम टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहे हो। अब आप रादर देन ये सोचने के कि मेरे मम्मी ने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, आप ये सोचो कि मुझे क्या बोला गया है और फिर सोचो कि मैं सच में क्या कर रहा हूँ। दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन टेकिंग दोज क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली एंड ऑल्सो मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशनशिप विथ योर फैमिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 20s में, क्योंकि हम वो रिबेलियस हो जाते हैं हमारे पेरेंट्स और फैमिली के अगेंस्ट जस्ट बिकॉज वो बार बार हमको कुछ कहते हैं और हमको लगता है कि ये इतना क्रिटिसिज्म क्यों मिल रहा है। सो थैंक्स वारिको फॉर ऑल्सो including this essential part in this book. Then he tells about the difference between watching a video and reading a book. तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि कैसे जब आप वीडियो देखते हो तो 10 चीज़ें हो रही होती हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही होती हैं। जैसे मेरी इसी वीडियो में आप देखोगे कभी यहाँ से कोई पिक्चर आ रहा होगा, कभी यहाँ से सब्सक्राइब का बटन आएगा, कभी वहाँ से मेरे हैंडल्स आएंगे। तो वीडियो इस तरीके का बना हुआ है जो आपको रेगुलरली आपकी अटेंशन को ब्रेक करता है, वेयरएज बुक इस तरीके से लिखी होती है जो आपके अटेंशन और फोकस को एक जगह पे लेके आती है। तो वाई ऑलवेज रीडिंग अ बुक इज़ better than or a greater thing than watching a video. And also I would like to applaud Wariko for always promoting reading as an habit, because it's very important and I have seen the changes in me in last 1.5 decades since I have started reading. So yeah, thanks Wariko again for that. Then what a right career looks like is shown through a wonderful diagram. So everyone who is confused if they have to convert their passion into their work or career, this diagram will help you a lot in understanding how to choose a field for your career. So that another good thing about the book. एक और चैप्टर है जो बताता है कि आपके जॉब के पहले 90 डेज में हाउ टू हैंडल इट, बिकॉज दिस इज सच अ क्रूशियल थिंग। इवन अ पर्सन लाइक मी हु हैज़ अराउंड 7-8 years ऑफ एक्सपीरियंस, एवरी टाइम यू स्विच अ कंपनी एंड यू गो टू अ न्यू कंपनी, यू आर ऑलवेज केयर्ड अबाउट हाउ यू विल बी परसीव्ड, आपको लोग कैसे देखेंगे, आपको कैसे जज किया जाएगा और आप कैसे काम करना चालू करो। तो उन्होंने बताया कि कैसे आप पहले पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करो अपने उन सभी लोगों के साथ टीम में जिनके साथ आप काम करने वाले हो, एंड देन गेट इनटू द प्रोफेशनल रिलेशनशिप पार्ट ऑफ इट। तो अब मैं आपको बताऊं, ये चीज़ मैंने खुद ने भी एग्जीक्यूट करी थी बहुत पहले, कि मेरा लोग कहते हैं कि स्कूल के बाद आपके फ्रेंड्स नहीं बन पाते, पर मेरे जो सबसे अच्छे फ्रेंड्स बने हैं वो मेरे करियर के दौरान बने हैं, जिनसे मैं रेगुलर मिलता हूँ। एंड इट इज़ ओनली बिकॉज वर्क को हमने बाद में प्रायोरिटी दी, पहले हमने एक दूसरे को समझने को प्रायोरिटी दी, हम क्यों काम कर रहे हैं, हम क्यों उस कंपनी में हैं, हम चाहते क्या हैं उस कंपनी से, हम चाहते क्या हैं लाइफ में। जब हम एक दूसरे को समझ पाए फिर साथ में काम करना बहुत इजी हो गया। रात में लेट रुकना या कभी जल्दी भागना वो सब बहुत आसानी से हो जाता था एग्जीक्यूट। सो या दैट इज़ ऑल्सो बीइंग इंक्लूडेड इन दिस बुक एंड एडवाइज्ड वेरी वेल। सो देयर इज़ वन मोर चैप्टर, जैसे कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ बट कई लोग ऐसा डिसीजन लेना चाह रहे होते हैं कि मैं अकेले रहूँ।
तो उन्होंने उसके प्रोस एंड कॉन्स बताए हैं। जब आप अकेले रहने की सोचते हो, शिफ्ट होने की सोचते हो, तो किस तरीके से आपको पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में ध्यान रखना पड़ता है, पैसा स्पेंड करने के बारे में ध्यान रखना पड़ता है, रिलेशनशिप मैनेजिंग, लाइफस्टाइल डिसिप्लिन, पेइंग बिल्स, टैक्सेस एक्सेट्रा, बहुत सी चीज़ें आती हैं अकेले रहने के साथ साथ। तो उन सबको कैसे मैनेज करना है उसके बारे में भी बहुत विस्तार में बताया गया है। अब बात करते हैं किताब के ड्रॉबैक्स की। एक्चुअली इस किताब में कोई ड्रॉबैक नहीं है। इस किताब का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है तो वो इसके ऑथर खुद तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अंकुर वारिकू जी लिंक्डइन पे भी पोस्ट करते हैं रोज़, फेसबुक पे भी करते हैं, ट्विटर पे भी करते हैं, यूट्यूब पे कंटेंट भी बनाते हैं, रोज़ रील भी अपलोड करते हैं, मेल पे न्यूज़लेटर भी भेजते हैं। अब जब आप इतना कुछ ऑलरेडी शेयर कर रहे हो तो जब आप एक किताब लिख रहे हो उसके लिए क्या ही बचेगा, राइट? सो क्योंकि मैं इनको हर पोर्टल पे फॉलो करता हूँ तो मैं ऐसा मानता हूँ कि 70% कंटेंट तो मैं पहले ही पढ़ चुका था उनके सोशल मीडिया कंटेंट के थ्रू। तो इसके लिए इस किताब में लिखने के लिए कुछ ज़्यादा बचता नहीं है। अभी भी उन्होंने इस किताब में अनाउंस किया है कि अगले साल उनकी नई किताब आएगी, कुछ उसका नाम होगा कुछ मेक एपिक मनी काइंड ऑफ थिंग। तो अब उन्होंने फाइनेंशियल के भी इतने वीडियोस बना चुके हैं कि आई एम अगेन डाउटफुल कि उस किताब में नया क्या सीखने को मिलेगा। तो क्योंकि उनका इतना ज़्यादा कंटेंट ऑलरेडी आउट है मार्केट में, तो इस किताब में बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो आपने नहीं सुनी है उनसे, जो आप ऑलरेडी सुन चुके हो। बट स्टिल सब कहते हुए अगर ये किताब आप सिर्फ मद्देनज़र रखो तो ये इतने अच्छी तरीके से लिखी हुई है कि मुझे नहीं लगता इसके बाद आपके किसी भी क्वेश्चन के आंसर रह जाएंगे जो इस किताब में नहीं दिए गए हैं। सो ओवरऑल रिकमेंडेड रीड, मैं इस किताब को 4.75 स्टार्स देता हूँ 5 स्टार्स में से। तो आप समझ सकते हो कितनी परफेक्ट किताब है। गेट इट फॉर योर सेल्फ। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं, छोटे दोस्त हैं, अड़ोसी पड़ोसी में जो बच्चे भी पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज हैं, करियर में नए हैं, उनको भी गिफ्ट करिए। और हाँ, ख़त्म करते करते एक और ड्रॉबैक कि वारिकू जी आप इस किताब के अपने MRPs थोड़े और बजटेड रखें, 100-150 रुपये में रखें, क्योंकि इसको स्टूडेंट्स खरीदेंगे, उनके पास शायद 300, 400, 500 रुपये नहीं होंगे। और हमेशा आप लोग ऐसा कह देते हो कि एक कॉफ़ी के दाम में किताब आ रही है, हर कोई स्टारबक्स से नहीं पीता, मैं तो 60 रुपये की कोल्ड कॉफ़ी पीता हूँ मार्केट से। तो किताब थोड़ी सस्ती करें ताकि हर किसी को अफोर्डेबल हो। वेल दैट्स ऑल, थैंक्स अ लॉट।